मेरे एसेट में अभी टोटल आप कितना पैसा मैनेज कर रहे हो सब लोगों का? So this is the 18th year and we are managing north of 2,25,000 crores. ओह वाह, Yeah. कैसे समझ आता है कि प्राइस ये इसमें कैप्चर हुआ है नहीं हुआ है, इसका वैल्यू कितना है? कहते हैं कि आपके कंपनी का जो फ्यूचर कैश फ्लो है नेक्स्ट 3, 5, 10 साल का और उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के यू अराइव एट अ वैल्यू ऑफ द बिजनेस. देन यू लुक एट वैल्यू एंड कंपेयर इट विद द प्राइस. इफ द वैल्यू इज मोर देन प्राइस देन ओनली यू विल बाय. बट आपके करियर में सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टॉक में बना होगा इन द पास्ट एंड व्हाट वर्कड? It happened to be my first research report. When I joined the industry, Hindustan Zinc, the stock price was 4 rupees. If someone were held, it would have been more than 1500 times or so. तो आपका क्या व्यू पॉइंट है ऑन ऑल दी स्टार्टअप्स दैट आर गेटिंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस? As an institution जो है वो इसमें differentiate नहीं करता है IPO, non IPO, government, non government. Business is business, which is growth, ROCE, कितना कैश जनरेट करते हैं. क्या इनके पास ऐसे मोट होता है या एडवांटेज होता है वेयर दे आर एबल टू जनरेट हायर रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड वर्सेस द अदर वन? Very nice question. Generally business का India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. तो अभी सर मेरे एसेट में अभी टोटल आप कितना पैसा मैनेज कर रहे हो सब लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का? So, just to sort of start on the journey, we started in 2008. So this is the 18th year, and we are managing north of 2,25,000 crores. Oh wow. Yeah. And We are ranked eighth wow. largest on active equity fund side. Yeah. That's amazing. And जब आपने ज्वाइन किया था तब क्या AUM था and कब ज्वाइन किया था No, the आपने? company started in 2008. So it started with obviously zero. Hmm. And since then, it's been fairly satisfactory journey for the organization. And I would say, I mean, just to give a context, Kushal, what happened is, if you recollect, we just started before global crisis. And between 2008 to 2014, the industry had a very tough time. If I recollect, post the global crisis, first of all, the year one itself was very tough because there was a drawdown of 40% because we started somewhere in March, April of 2008, and then you had the global sort of crisis. But next 6 years, 2008 to 2014, cumulatively, I think the industry, there was a drawdown of 50,000-60,000 crores outflow from the mutual fund industry. In that period, you'll be surprised, foreigners put in $100 billion, 6 lakh crores. My God. So it was a bit headwind, and it's always difficult to get business going when there are sort of headwind. And thereafter, I think the industry had a beautiful time post 2014, and all of us know how it has done in last few years and the beauty of SIP getting traction, etc. So a lot of our success, why we see as an house we are north of 2,20,000 odd crores, is also to do with the tailwinds of the mutual fund industry in general. So we are sort of grateful for that financialization trend, and we are part of that journey. Yeah, That's amazing. तो आपने कब ज्वाइन किया था? 2008 में ही? I joined in 2008. So yeah. you were like the first, one of the first. Yeah, one of the first few persons. investment employees. Yeah, अच्छा, yeah, got it. Yeah. And अभी आप कौन से funds देख रहे हो at मेरे asset? So on my own, I am looking at there's a fund called Large and Mid Cap Fund, which was erstwhile called Emerging Blue Chip Fund. So there, it's managed by Ankit Jain and myself. Initially, I was managing it, but for last almost 6 years, both of us are managing it. In addition, there is one Tech Saver Fund. It's called ELSS Fund. That also I am looking at it. These two funds, I'm looking at it independently. And I said in the Emerging Blue Chip, I'm a co-manager. But as a house, we have obviously portfolio of almost 15 odd products, and there are the entire team. There's a 21 member team of fund managers and analysts, and they are looking at various products. और मैं पढ़ रहा था कि आपका बेसिकली इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो अभी लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया है, आपका ELSS टैक्स सेवर फंड, इनका परसेंटेज कैगर हैज बीन 19%, राइट? Yeah. I mean, the Emerging Blue Chip Fund was the earlier name, as you said. And now it is called
large and mid cap fund, which is what the category is. In fact, it completed 15 years Oh, wow. this calendar year, mid July 2025. Congratulations. Yeah, thanks. And it's 17x in 15 years. The direct Wow. NAV 10 rupees, 170, closer to 170, Kya which baat is hai. north of 20% return. And the second product, which is the ELSS fund, is completing 10 years this month, end of this month. And that's, you are right, about 19 odd percent CAGR. These are like just mind-blowing numbers. So, sir, I think you are like the best person to teach us about investing and stock markets because आपने इतने सालों से इसमें काम किया है. तो let's try to understand your philosophy of investing and आप कैसे basically identify करते हो stocks and कैसे आपने 20% CAGR दिया in large and mid cap and 19% CAGR in the ELSS tax saver. So before we get into the ELSS tax saver, एक बार briefly बताओगे कि आप जब large and mid cap fund manage करते हो तो आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसे होता है एंड कैसे इतना ज्यादा परसेंटेज रिटर्न पाना पॉसिबल कैसे होता है? व्हाट वर लाइक सम ऑफ द हैक्स? श्योर। तो ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और बेसिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। और एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट माई सेल्फ और द फंड एंड यू व्हाट यू मेंशन्ड, उसमें ये कि आप देयर इज़ अ प्रॉपर टीम प्रोसेसेस एंड वी आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। सो देयर इज़ अ बैक एंड ऑफ वेरी सीरियस प्रोफेशनल जो सेक्टर कवर करते हैं, फंड मैनेजर्स हैं, तो जैसे 21 मेंबर टीम है। सो आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एज एन इंस्टीट्यूशन जनरली व्हाट वी लुक एट इट। तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो आप स्टॉक का चयन कैसा करते हैं, राइट, हाउ डू यू सेलेक्ट। सेकंड इज पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। सो ऑन स्टॉक सिलेक्शन इसमें भी क्या होते हैं, देयर आर 2-3 सब कंपोनेंट्स। जैसे हम बोलते हैं स्टॉक विच देयर आर सो मेनी स्टॉक्स लिस्टेड, सो वी आर कवरिंग से अबाउट 700 कंपनीज। जो टॉप 700 कंपनीज है, एज अ हाउस 21 मेंबर टीम इज कवरिंग दैट। पर उसमें कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। आप कौन सा बिजनेस सिलेक्शन के क्या पैरामीटर्स देखते हैं, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन कैसे करते हैं और वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो इसमें जो बिजनेस सिलेक्शन है जनरली क्या है, हमारा जो अप्रोच है और जो पुरानी केस हिस्ट्रीज भी बोलती हैं वेल्थ क्रिएशन की, कि बिजनेस में 2 चीज़ जरूरी है। एक तो ग्रोथ होना चाहिए। सी, इंडिया इज अबाउट ग्रोथ, इक्विटी इज अबाउट ग्रोथ, सो ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। और ग्रोथ का भी एक आप कट ऑफ डाल सकते हैं कि अगर ये देश 10-11% नॉमिनल जीडीपी पे ग्रो कर रहा है, तो जो बिजनेस लेने हैं एटलीस्ट इट शुड ग्रो मोर देन दैट, हायर द बेटर। जितना ज़्यादा हुआ मिड टीन से हायर टीन से, इट्स मच बेटर। सेकंड होता है उस ग्रोथ की कैरेक्टर क्या है। ग्रोथ कैन क्रिएट वैल्यू, नॉट क्रिएट वैल्यू। तो उसमें एक फैक्टर होता है, जैसे अपने लोग ने फाइनेंस में पढ़ा होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि अगर 100 रुपये बिजनेस में डाले तो उसमें कितना पैसा जनरेट होता है, EBIT बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट। तो उसमें हम लोग एक फिल्टर डालते हैं 15% प्री टैक्स। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्गर टर्म ग्रोथ क्या है, द बिजनेस शुड ग्रो एट 10, 11, 15, एज आई सेड, हायर द बेटर, बट इट शुड हैव अ सुपीरियर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बेसिक ये फिल्टर है। अगेन इस केस में भी जिसमें जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। और जो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, हम बोलते हैं एंट्री बैरियर्स, मोट, आई थिंक एवरीथिंग ये सब्ज्यूम हो जाता है। अगर किसी बिजनेस में 10-20 साल का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि उसमें एंट्री बैरियर्स नहीं होंगे या मोट नहीं होगा या कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा या कमोडिटाइज्ड होगा। तो एक तो ये पहलू होता है। दूसरा होता है मैनेजमेंट। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है, यू कैन चूज बिजनेसेस। ब्यूटी अबाउट दिस इंडस्ट्री इज इतने सारे बिजनेसेस आप चूज कर सकते हैं, बट कोई और रन कर रहा है। तो आप उस मैनेजमेंट का कैसे विश्लेषण, ये कैसे एनालिसिस करते हैं, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है। इट्स नॉट समथिंग कि कुछ एक पैरामीटर है। अनलाइक ROCs एंड ऑल, यू कांट हैव वन सिंगल फैक्टर कि ये मैनेजमेंट कैसा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। फर्स्ट इज पास्ट टॉक्स लॉट अबाउट फ्यूचर। तो जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, इंटीग्रिटी, इंटेलेक्ट एंड एनर्जी इन दैट ऑर्डर, व्हाट यू सी एज अ, मतलब किसी व्यक्ति में या किसी मैनेजमेंट में वो देखते हैं कि इंटीग्रिटी मतलब आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए कंपनी में। वी शुड बी इन सेम बोट, वी आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर, हुएवर इज रनिंग द बिजनेस, वी शुड बी इन द सेम बोट। तो एक तो वो पहलू होता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या उनमें डू दे हैव फायर इन बेली टू ग्रो विद द इंडस्ट्री, कैपिटल एलोकेशन कैसा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप देखते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। इसको बोल सकता हूँ मैं मैनेजमेंट एनालिसिस, बिकॉज सेम सेक्टर में देयर आर गुड मैनेजमेंट, नॉट सो गुड मैनेजमेंट, एंड दैट हैज अ लॉन्गर टर्म इम्प्लीकेशन ऑन स्टॉक रिटर्न। तीसरा जो फैक्टर है वो वैल्यूएशन। एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, राइट, एवरीथिंग इज नॉट गुड एट अ प्राइस ऑल्सो। सो मैं जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना कि कोई अच्छा बिजनेस है। जनरली हम लोग देखते हैं, पीपल टॉक अबाउट ये ट्रेंड बहुत अच्छा है, अब ये सेक्टर चलेगा। दे डोंट टॉक, यू हैव टू क्लब इट विथ वैल्यूएशन।
a good sector, a good business need not be a good investment or a stock. If you are paying, अगर आप रुपए की चीज़ 8 आने में ले रहे हैं, is very different than अगर उसको आप overpay कर रहे हैं। तो उसका एक साइंटिफिक वे में जो टीम और जो सेक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हम जैसे हम लोग 600-700 कंपनीज को कवर करते हैं, वो ये तीनों चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, या कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी ये तीनों पहलू देखने पड़ते हैं। तो आई थिंक मैं थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूँ, बट ये दिस इज द स्टॉक सिलेक्शन थिंग। नाउ इसमें देर आर गो एरिया, नॉन गो एरिया। अगर कोई बिजनेस इंफीरियर ग्रोथ है तो नहीं करना चाहिए सेलेक्ट। किसी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे हिसाब से 15% प्री टैक्स नहीं है तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। या प्राइस इज ऑलरेडी कैप्चरिंग, प्राइस शुड बी लोअर देन द वैल्यू, राइट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको बोलते हैं, विच इज डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो जनरली होता है कभी फ्लेवर ऑफ द सीजन स्टॉक्स या सेक्टर हैं। तो ये हो गया स्टॉक रिलेटेड जो पैरामीटर्स, और कैसे हम एज एन इंस्टीट्यूट या कोई भी जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है उसका आप कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते हैं, एंड देन यू कम आउट विथ सर्टन सेट ऑफ स्टॉक्स जो आप ले सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है जो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर्मेट, या जहाँ इतना आप बड़ा अमाउंट मैनेज कर रहे हैं, और अदरवाइज ऑल्सो कि पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आइडिया इज टू हैव अ रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो, इज नॉट टू चेज द बेस्ट रिटर्न बाय टेकिंग मोर रिस्क। तो इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। हम लोग का जो मेजरमेंट होता है वो बेंचमार्क से होता है। जैसे आपको मालूम होगा पॉपुलर बेंचमार्क है निफ्टी, या जैसे लार्ज एंड मिड कैप का आपने जब बताया, तो उसमें एक डिफरेंट बेंचमार्क है। उसमें 250 स्टॉक का बेंचमार्क है, आधा लार्ज कैप आधा मिड कैप। तो उसको हमको बीट करना है कंसिस्टेंटली। तो जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम रिस्क एडजस्टेड मेजर में करते हैं कि कोई भी क्षेत्र की कंपनी, जैसे मैं बोलता हूँ एक सेक्टर स्टॉक स्टाइल थीम शुड नॉट बी एज अ डिस्प्रोपोर्शनेट। तो उसका एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक पोर्टफोलियो का साइकोग्राफिक्स होना चाहिए कि इट्स ए रिस्क एडजस्टेड। उसका कारण ये है कि when we do research and when we buy companies, so not all calls can go right. Sometimes external situation change हो जाती है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, इंडस्ट्री डायनेमिक्स चेंज हो जाती है। Sometimes our assumptions can go wrong. So the allocation you are doing to the portfolio weights should be able to take those wrong calls etc. and yet deliver as a portfolio better return than the benchmark. वो एक चेष्टा रहती है एक कोई भी फंड मैनेजर की कि मैं कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीट करूं। बिकॉज इंडिया में बेंचमार्क भी बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं। अगर आपको मालूम है, ये शायद 40 इयर्स हो रहे हैं सेंसेक्स के। सेंसेक्स वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1979, सो 45 इयर्स में इट्स अप 850 टाइम्स, बट दैट्स रॉन्ग, एक्चुअली इट्स अप मोर लाइक 1300 टाइम्स, बिकॉज उसके अंदर डिविडेंड की काउंटिंग नहीं है। सो आई थिंक वेरी लॉन्ग आंसर, बट दैट इज व्हाट एज अ हाउस विल लुक एट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। फिर फंड मैनेजर्स बेस्ड ऑन द मैंडेट ऑफ द स्कीम उसका चयन करते हैं। तो आप बोल रहे हो सेंसेक्स 1300 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अगर मैं बेसिकली कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस अगर डिविडेंड जो वो स्टॉक ने दिया था अगर वो भी इंक्लूड करूँ तो 1300 गुना 45 years में 1300। वाओ, फिनोमिनल। एंड सॉरी जस्ट टू कंप्लीट, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स निवेशक पैसा देते हैं कि आप इंडेक्स से बेटर करें अदरवाइज। सो द आइडिया है, बट उसमें देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो which can take a risk adjusted bet rather than taking isolated concentrated sort of bets. So आपने बताया कि योर फंड गिव लाइक अ कैगर ऑफ 20%, 19% रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा कोई साल था पूरे लास्ट के फंड के टेन्योर में जहाँ पर कोई एक साल नेगेटिव रिटर्न हुआ, या तो कोई एक साल, कितने साल बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया और कितने साल बेंचमार्क को बीट कर पाया? या सो हर फंड का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीरियड है। आइडियली इज टू, या अगर मैं ये पूछा लार्ज एंड मिड कैप, या लार्ज एंड मिड कैप में, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज आई वुड से 9 out of 10 टाइम्स इनकम सो हैज बीन बीटिंग द सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क और सो, बट देयर कैन बी पीरियड। इसमें क्या रहता है कि हम लोग इन्वेस्टर्स को भी बोलते हैं कि आप जो लेंस आप इवेल्युएट कर रहे हैं उसमें 3 to 5 years के लेंस से देखना चाहिए। तो हो सकता है एक साल अंडर परफॉर्मेंस आ जाए, एक साल बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आ जाए। और एब्सोल्यूट रिटर्न्स तो जब मार्केट, जैसे फर्स्ट फंड जिसका हमने बात नहीं करी है, जब हमने एएमसी लॉन्च हुई थी, मैंने बोला year 1 और रिटर्न वाज -40% बिकॉज ग्लोबल क्राइसिस था 2008 में, राइट? द इंडेक्स इटसेल्फ फेल बाय सो मच परसेंटेज और इनफैक्ट मोर। सो वी शुड नॉट लुक एट एब्सोल्यूट रिटर्न और अ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। यू हैव टू लुक एट इक्विटीज में व्हाट यू नीड इज टाइम।
Similarly, the lens to look should be more from a 3 to 5 year perspective. Is a particular fund able to outperform the benchmark, and how much risk it is taking to perform more or less than the benchmark? तो सर इसमें आपने आंसर में बताया कि प्राइस इज ऑलरेडी कैप्चर्ड इन, ये आप देखते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक. कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल कि कैसे समझ आता है कि प्राइस ये इसमें कैप्चर हुआ है नहीं हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको समझना है. जी हाँ, जी हाँ. नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला. देखिए, प्राइस तो स्टॉक मार्केट प्राइस इज नोन टू एवरीवन. जो टिकर प्राइस आ रही है, राइट? सो प्राइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट वैल्यू. सो हाउ डू यू वैल्यू अ स्टॉक? नाउ, assessment of a particular business, your value can be different from me. As a house, our value can be different. That depends on understanding the business. That depends on, because based on my or our team understanding, the analyst understanding, will make our, because valuation is based on the future cash flow. तो उसके जो पैरामीटर होते हैं कि आपके कंपनी का जो फ्यूचर कैश फ्लो है नेक्स्ट 3, 5, 10 साल का, और उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के यू अराइव एट अ वैल्यू ऑफ द बिजनेस. Then you look at value and compare it with the price. If the value is more than price, then only you will buy. And the reverse is also true. That if your value, if the price is significantly more than value, you will probably sell it or reduce it, right? So to your question, how the value is decided, it depends on the depth of understanding of the business. उसको institutionalization कैसे कर सकते हैं कि आपके जो क्षेत्र के जो सेक्टर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, सीमेंट का सेपरेट है, फाइनेंशियल्स का अलग, जैसे जो 15-20 लार्ज सेक्टर्स हैं उसके स्पेशलिस्ट हैं, वो देयर जॉब इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, मीट द कंपनीज. प्राइमरी रिसर्च मतलब खुद की जो रिसर्च करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च जो ब्रोकर्स सर्विस करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं, दे कीप ऑन मीटिंग इंडस्ट्री गाइज एंड दे कम टू अ कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस एंड डू द प्रोजेक्शंस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. बिकॉज पास्ट इज नोन टू एवरीवन and past can't decide a value so easily. Life is not so simple. So in that sense, you have to make some assumptions on the future stream of cash flow. You arrive at a present value of cash flow based on the discount factor, और उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड. ये मतलब ब्रॉड ढांचा यही है, बट द जोकर इन द पैक इज व्हाट assumptions you are using. टर्मिनल रेट, ग्रोथ रेट क्या ले रहे हैं, बिजनेस कितना ग्रो करेगा, उसका ROC कितना है, वो थोड़े बहुत नुएंसेस रहते हैं, बट दिस इज व्हाट द फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूएशन इज. एंड व्हाट आई मेंट टू से कि प्राइस वैल्यू गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, एक्सटर्नल सिचुएशन गलत हो सकती है, तो उसको आपको हाउ डू यू टैकल दैट? One way of tackling is, if my price value cushion is very significant, तो it has a lot of margin of safety जिसको बोलते हैं. So that Benjamin Graham has said, and Mr. Buffett has said, these are the 3 most powerful words: margin of safety. So if you have higher margin of safety, that means the assessment of value is significantly more than the current stock price, which is known to everyone. Even if the assumptions were to go wrong externally or internally, there is a cushion of upside. So that's what it's I will call it, it's more of a science, but it needs a lot of intense research in terms of understanding the business, because same business can have different valuation for different people. तो जिस सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ, तो अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर प्राइस बहुत कम है, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो दिस मीन्स दैट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज मच हायर, राइट? एब्सोल्युटली. एंड अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हायर, इट मीन्स कि अगर आपका थोड़ा प्रेडिक्शन रॉन्ग भी हो गया, तो फिर भी आपका इतना डिफरेंस ज़्यादा है कि वो कुशन बेसिकली डेवलप हो जाता है. एब्सोल्युटली. तो उसमें दैट इज बेटर. लाइक बिल्कुल आपने सही बोला, बिकॉज इसमें जैसे मैंने बोला, द जोकर इन द पैकेज, आपका वैल्यू असेसमेंट क्या है? बिकॉज वैल्यू असेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. इट्स नॉट दैट इट फॉर सेपरेट. एंड सी, स्टॉक मार्केट में ब्यूटी ये है, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर. मतलब एक सोच रहा है कि वो महंगा है, प्राइस वैल्यू गैप है, उसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, इसलिए वो बेच रहा है, और एक सोच रहा है वो सस्ता है. अगर आप ऐसा ब्रॉडली देखो, तो इसका मतलब है कि एवरीवन हैज प्राइसेस सेम, वैल्यू असेसमेंट इंट्यूटिवली इज डिफरेंट. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू go in the detail of understanding the business, and then you sort of arrive at but your conclusion is absolutely right. The difference between the two is margin of safety. इसलिए paradoxically एक बहुत इसके जैसे बोलते हैं कि आपके पास जब मार्केट जैसे बहुत नीचे होता है, या कोई कंपनी गोइंग थ्रू अ बैड पैच एंड द प्राइस हैज करेक्टेड मीनिंगफुली, या जैसे कोविड में हुआ या ग्लोबल क्राइसिस के बाद हुआ, तो प्राइजेस गिर जाते हैं. वैल्यू बिजनेस के जनरली सेल आउट वैल्यू इतने नहीं गिरते हैं, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है. दैट मीन्स यू गेट इंस्टेंसेस वेर यू टेक लो रिस्क एंड हाई रिटर्न्स.
अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, अगर आप रुपए की चीज़ 8 आने या 4 आने में ले रहे हैं, राइट? डॉलर फॉर 25 सेंट्स, दैट मीन्स दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू हैव सो मच ऑफ कुशन दैट यू विल मेक सम अपसाइड. So it is counterintuitive कि high risk high return होना चाहिए. In those scenarios, it is low risk and high returns. राइट, वेरी वेल सेड. आपके हिसाब से एट प्रेजेंट या 2026 में अभी हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर एट प्रेजेंट आपको कौन से बिजनेसेस या कौन से सेक्टर जैसे लगते हैं जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी हाई? Yeah. So frankly, जिस हिसाब से लास्ट फ्यू इयर्स में फ्लोज हैं, इकोनॉमी या पार्टिसिपेशन है, एटलीस्ट मैं लास्ट सो मेनी ईयर्स से मार्केट देख रहा हूँ, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा बीटन डाउन है इन वैल्यूएशन. इट्स अ वेरी थोड़ा विचित्र सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बोल सकता हूँ, एंड नॉट गुड फॉर सम वेरी डीप इन वैल्यू इन्वेस्टर्स. नथिंग इज विच इज़ वेरी वेरी चीप. It's just that something reasonable. So it's not like deep in value where you are getting a dollar for 20 cents, 50 cents, or sort of those sort of scenarios. Now, it was there till recently. Also, it was there. Let's say we look at government companies 5-6 years back. Look at any phase. Let's say during IT bubble in late 90s. You look at old economic companies. You look at consumer or pharma companies in 2008 or so. But today I don't see, to your question, that is one couple of sectors which are very cheap, where you see a higher margin of safety, like significant sort of thing. That said, many businesses are reasonable. I mean, we are not always lucky कि हमेशा आपको चीज़ बहुत ही सस्ती मिलेगी. अगर सपोज सस्ती नहीं भी है पर ग्रो कर रही हैं, बिकॉज वैल्यू ग्रो करता है. आपकी जो वैल्यू सपोज 100 रुपए की वैल्यू है, स्टॉक प्राइस 80 है, तो अपसाइड आपकी 20 रुपीज़ है, बट जो 100 रुपए की जो आपकी वैल्यू है वो आज की तारीख की वैल्यू है. इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. वो आफ्टर ए ईयर इट विल बी 120 और 115 डिपेंडिंग ऑन द करेक्टर ऑफ द बिजनेस. सो समटाइम्स यू कैन बाय सेम वैल्यूएशन, ऑलमोस्ट प्राइस वैल्यू में ज़्यादा गैप नहीं हो, प्रोवाइडेड वैल्यू आपकी कंपाउंड कर रही है, राइट? दैट इज ऑल्सो अ रिटर्न, राइट? So you're saying many businesses are reasonable. Can I you give think some most businesses examples? are reasonable. There are some pockets जिसको मैं बोलूँगा जो मास कंजम्पशन में हैं, जहाँ लास्ट 5-6 साल से for various reason growth नहीं आई है. And we have seen some triggers which the government has taken. For example, in autos that has changed because of GST, etc. But मेरी mass consumption कोविड के बाद क्या हुआ, के शेप रिकवरी हुई. सो प्रीमियम कंजम्पशन हैज डन वेल एंड इन्वेस्टमेंट साइड हैज डन वेल. मास कंजम्पशन वाज इम्पैक्टेड बाय इन्फ्लेशन एंड मल्टीपल थिंग्स. सो आई थिंक उसके अंदर कुछ कोहोर्ट्स हैं, मास रिटेल, फुटवेयर, बिल्डिंग मटेरियल्स. those some of those businesses are more cheap, but as a large overall perspective of market, at least in my view, is not something which is very beaten down. So what you will get is more reasonable valuation and compounding of that. मतलब मल्टीपल में का स्कोप बढ़ने का नहीं है, पर आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है उतना रिटर्न आएगा. गॉट इट. के शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है एंड इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे क्या होता है? नहीं, के शेप रिकवरी ये एक टर्म यूज हुआ था पोस्ट कोविड. देखिए, जो कंजम्पशन साइड में जो प्रीमियम और अपर मिडिल क्लास जो दैट सेगमेंट डिड वेरी वेल, राइट? एंड द बॉटम ऑफ द पिरामिड लास्ट 5-6 साल से, मतलब प्री कोविड का पीरियड ले लूँ 2018-19 से लेकर अभी तक, दे गॉट इम्पैक्टेड बाय मल्टीपल हेडविंड्स. पहले तो कोविड आया, किसी का जॉब चले गया, किसी ने एडिशनल लोन ले लिया, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत हुआ है. अगर आप देखेंगे कोई जो मास कंजम्पशन हाई टिकट आइटम है, मोटरसाइकिल देखेंगे तो उसके प्राइस डबल हो गए हैं लास्ट 6 साल में. जनरली इतना इन्फ्लेशन नहीं होता है. 50,000 की बाइक इज लाइक मोर लाइक 90,000, 1 lakh और सो. सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि दैट सेगमेंट had lot of challenges in last 5-6 years. That's what most economies were using the word K-shaped, which is now getting blurred. Now we are seeing going forward, markets are forward looking. I think that trend is going to sort of change, and we'll see mass consumption also reviving for various factors. Inflation is under control, interest rates have come down, state government has given letters of support. We have given direct tax concession, we have given indirect tax concession through GST reforms, and we have pay commission coming in. तो इन सब का अगर मैं ओवरऑल अगर इसका एक बिग पिक्चर अगर हम देखेंगे तो ये जो के शेप रिकवरी ये टर्म पास्ट में यूज हुआ था पोस्ट कोविड टिल 2023, 24 एंड 25, बट ये अभी मेरे हिसाब से ब्लर्ड होना चाहिए. एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड में भी बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स नॉर्मल सी आने चाहिए. मैं ये बोल रहा था कि बिकॉज दैट सेगमेंट डिडंट हैव, उसका जो अर्निंग्स की जो ग्रोथ है और उनके स्टॉक प्राइसेस भी लास्ट 5-7 साल में ज़्यादा नहीं चले हैं, तो उधर एक वैल्यूएशन आर्बिट्राज है.
एंड इसमें आपके लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप बता रहे हो 20% CAGR था, तो उसमें एक बार बताओगे लाइक व्हाट वर्कड रियली वेल, एंड क्या बेट्स थे जो आपको लगा बहुत ज़्यादा ही अच्छे चले, और ऐसे कोई बेट्स थे जो आपको लगा कि चलने चाहिए थे बट नहीं चले, लाइक व्हाट रियली वर्कड वेल? या तो इसमें तो देखिए जो बहुत सारे कॉल्स लिए हैं लास्ट 15 साल में, और पूरा जो इन्होंने बोला पूरी एक टीम बेस अप्रोच रहती है, तो एक कोई सिंगल स्टॉक की वजह से कोई एट्रीब्यूशन रहा नहीं है। बट आपके एक प्रश्न का अगर मैं आंसर दूं तो लास्ट 15 साल में या जब से, तो हम लोग ने काफ़ी बार उस टाइप के स्टॉक लिए हैं जहाँ पे नियर टर्म थोड़ा हेजी है, धुंधला है, जिसको मैं बोल सकता हूँ वर्ड कि वेयर नियर टर्म इज इम्पेयर्ड, लॉन्ग टर्म इज इंटैक्ट। कैसा होता है, मेनी कंपनीज, समटाइम्स सेक्टर्स और समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ मार्केट किसी कारण के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से, किसी कारणवश नियर टर्म हेडविंड्स रहती हैं, राइट। लेट्स से आई विल गिव फ्यू एग्जांपल्स विच आर ऑल टाइम स्टैम्प्ड। मतलब हमारे फंड में हम लोग ने उसमें एक्ट किया है। 2010 में देखेंगे तो एक पैसेंजर व्हीकल कंपनी जो लार्जेस्ट थी, उसको कुछ स्ट्राइक हुआ, लॉकडाउन हुआ, कुछ दूसरे इश्यूज हुए, तो स्टॉक प्राइस करेक्टेड सिग्निफिकेंटली। या 2013-14 में आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बिकॉज हमारे करंट उस समय फॉरेक्स का इशू था, ये सारे दे बिकम वेरी चीप, दे बिकम द एब्सोल्यूट साइज ऑफ सम ऑफ द all marketing companies will be surprised at less than 5,000 crores, which is not even, I mean, their cash flow sometimes quarterly is now more than that. That was so cheap 10 years back. फार्मा में एक फेज आया था जब FDA इशू हुआ, किसी IT कंपनी में फेज आया। तो जनरली क्या होता है, उस कंडीशन में नियर टर्म में आपको मालूम नहीं होता है कि रिवाइवल होगा कि नहीं, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंचाइज, राइट। सो उसमें जो थर्ड एस्पेक्ट है स्टॉक सिलेक्शन का, एक तो बिजनेस अच्छा है, valuation, मतलब these are all well established blue chip strong franchise, and valuation is cheaper because of some reason which is impairing in the near term. तो आपका, जैसे मैंने बोला है, वैल्यू प्राइजेस ज्यादा करेक्ट करती है, सेल आउट वैल्यू ऑफ बिजनेस उतना नहीं गिरता है, 5-10% गिर सकता है। कोविड इम्पैक्टेड द एंटायर मार्केट, सेम थिंग। सो वो उस टाइप की सिचुएशन में एज अ फंड हाउस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लार्ज एंड मिड कैप, एज आई एम टॉकिंग एज अ मेरे एज अ फंड हाउस, वी हैव एक्टेड मेनी टाइम्स in last 15 years, and I have generally seen that has given higher margin of safety, they have given superior return, और उसमें और दूसरे भी टेक्निकल एस्पेक्ट रहते हैं, you get time to buy and you get enough, I mean, ऐसा उसमें कोई these are like these are not contrarian in that sense, these are like classic contrarian case where good franchise is going through bad times, तो आपका margin of safety इतना ज़्यादा रहता है। Only thing is you don't know the timing of re-rating. So I think there have been multiple instances where as a team, and definitely in this fund, and that has one of the reason, I'm not saying that's the only reason, one of the reason, if I have to call out to your question, which has helped the performance. एंड ऐसा कोई बेट रहा है कि आपको लगा कि बहुत अच्छा चलना चाहिए बट वो बिल्कुल भी नहीं चला? देखिए, अगर मिस्टेक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत अगर रिपोर्ट कार्ड अगर मैं देखता हूँ तो बाय एंड लार्ज जो जिसको बोलते हैं जो स्टॉक लिया है नहीं चला, और परमानेंटली नहीं चला। एक तो नियर टर्म में नहीं चला, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, आप सोच रहे हैं कि 2-3 साल में रिटर्न हो जाएगा, कई बार सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। बट आई थिंक मिस्टेक्स मोस्टली जिसको हम बोलते हैं ना, एरर्स ऑफ ओमिशन, जो नहीं लिया और चल गया, या जो जल्दी बेच दिया चल गया, उस टाइप के ज़्यादा हैं, रादर देन जो लिया और नहीं चल रहा है वो मोमेंटरली, जिसको बोलते हैं कोटेशनल लॉस हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द मिस्टेक आई वुड से इज जनरली वी हैव सीन इज कि आपने जल्दी बेच दिया पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज जो 2022, 23, 24 में डिड वेरी वेल, वी वर वेरी अर्ली आइडेंटिफायर, or whether it is power hai, whether it is even defense name, 2017, 18, 19, 20, we had it in our portfolio. But थोड़ा जल्दी बेच दिया, maybe we had for 4-5 years. So something like that. That I would say is errors of omission rather than errors of commission. हाँ, वही होता है ना, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जी हाँ। बेसिकली मैथमेटिक्स में सिखाया जी जाता है। हाँ, तो ये जी जो टाइप 2 एरर का एग्जांपल जो आप जी बोल हाँ, रहे हो, जी हाँ। तो इसमें आपने बताया कि जैसे गवर्नमेंट कंपनीज जो आपने पहले आइडेंटिफाई कर ली थी, PSU, एंड वो रैली भी हुआ, तो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि आप ये थीम आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि हाँ अभी इसमें रैली आ सकता है, ताकि हमें भी समझे कि अभी कैसे थीम आइडेंटिफाई करना है, मार्केट साइकिल आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम लोग भी उसमें इन्वेस्ट कर जी सकें। हाँ, जी हाँ। नहीं, वो दैट मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ द एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज, बिकॉज हम लोग सेक्टर एनालिसिस करते हैं, सेक्टर स्पेशलिस्ट, और
वी आर एग्नोस्टिक टू, मतलब हम लोग को इंडिफरेंट है कौन मैनेजर है, प्राइवेट ओनरशिप है या गवर्नमेंट ओनरशिप है। जो बिजनेस के जो बेसिक ट्रेड्स है, मैंने आपको जो 4 क्राइटेरिया बताए, ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन एंड प्राइस वैल्यू गैप, इसका चयन किया जाता है और उस बेसिस पे समटाइम्स यू गेट सेक्टर्स, समटाइम्स यू गेट कंपनीज। गॉट इट। एंड ऐसा कभी हुआ है कि आप एक कोई सेक्टर पे बुलिश थे बट वो सेक्टर चला नहीं? हाँ, जैसा मैंने बताया, इस टाइप का ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ कि जो परमानेंटली नहीं चला। Okay. ऐसा हो सकता है कि 2 साल तक नहीं चल रहा है या और ज्यादा हेडविंड्स आ गई, बट इसको वो कोटेशनल हुआ कि अगर 3rd ईयर चल जाए या 4th ईयर चल जाए। सो आई डोंट थिंक सो दैट हैज हैपेंड। I was just reading कि last 2 years have been a little challenging for the fund because इतने returns ज़्यादा नहीं दे पाए जितने previously दिए थे। तो क्या हुआ exactly like last 2 साल में? You are right. Like this is 18th year, so first 15-16 years fairly consistent. Last 2 years में absolute returns were there. Relative to the benchmark was also there. Is that relative to जो peers जो होता है वो थोड़ा कम था। उसका कारण 2 कारण थे, जैसे मैंने बताया। मोर इम्पोर्टेंटली कुछ क्षेत्र में जो नहीं लिया वो बहुत स्ट्रांगली चल गए, राइट, या पहले आपने भेज दिया। और वही सेम कंपनीज जो इंफ्रा रिलेटेड थी, कैपिटल गुड्स रिलेटेड थी, अगर आपको ध्यान होगा 2023-24 में काफ़ी ज़्यादा चल गया। अभी वी आर सीइंग करेक्शन। लार्जेस्ट प्राइवेट यूटिलिटी देखेंगे तो 30-40% करेक्शन हो गया 15 महीने में। तो बट दैट कॉज द डैमेज इन 2024। उसको मैं स्टिल कोटेशनल बोलूंगा बिकॉज समटाइम्स यू हैव फेजेस वेयर सर्टन थिंग्स सॉर्ट ऑफ डिड वेल। आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन ऑफ दैट। एंड इफ यू सी टुडे इट्स कवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द 2000 कैलेंडर ईयर 23 एंड 24। बाय द वे, अगर आप जैसे 15 साल या 18 साल या 10 साल का भी कोई भी फंड हाउस का आप देखेंगे तो जनरली आपको रोलिंग 3-5 ईयर रिटर्न देखना चाहिए, क्योंकि हर साल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म। रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है? रोलिंग रिटर्न मतलब आप आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स क्या देते हैं। 1 साल पहले मैंने 5 ईयर्स रिटर्न क्या थे, ऐसे हर पीरियड में आपका अगर 15 साल का फंड की सपोज हिस्ट्री है तो मेरे पास 10 डेटा पॉइंट है और 5 ईयर रिटर्न्स। दैट विल शो माई कंसिस्टेंटली एम आई इन दैट पीरियड आउट परफॉर्मिंग। जो 2 लक्ष्य होते हैं, एक तो आपको बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टर विल हैव टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। जैसे मैंने बोला, इंडिया में बेंचमार्क इज गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स। वी हैव टू गिव, पीपल आर गिविंग मनी, एक्टिव फंड मैनेजर कोई, इन द होप दैट वी हैव टू कि भाई 1% 2% बेंचमार्क से ज़्यादा आप एक्टिव मैनेजर कमा के देंगे बिकॉज ऑफ द सुपीरियर रिसर्च एंड द प्राइस एंड एफिशिएंसी इन द सिस्टम। दूसरा होता है कि जो पीयर ग्रुप रैंकिंग है उसमें आपको फर्स्ट सेकंड क्वार्टाइल जो बोलते हैं ना, टॉप 50% में रहना चाहिए। एंड थर्ड ऑब्वियसली इज द एब्सोल्यूट रिटर्न विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रोलिंग रिटर्न विल शो कंसिस्टेंसी। कोई भी, कई बार क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कोई भी एसेट क्लास का या कोई भी फंड हाउस का हो या कोई भी कंपनी का, पॉइंट टू पॉइंट कैन बी मिसनॉमर। पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोग डिफेंस कंपनी की या गवर्नमेंट क्षेत्र की बात कर रहे थे, अगर मैं 2018-19 में देखता तो बहुत ही अलग दिखता, 2 साल पहले देखता तो बहुत ही अलग दिखता है। तो बेस्ट इज टू लुक इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and consistency of that return. That is rolling return. Got it. So that is a better metric as compared to seeing the percentage CAGR for 3 year, at 5 a year, given 10. point in time. Yeah, correct. You have to look at time series of that percentage CAGR to see that how many times the fund has done relative to the benchmark and peers, and then make a selection. Yeah. So हर fund house और हर fund manager की चेष्टा, उसको right to win होना चाहिए। Investors and आप जैसे जो एनालिस्ट हैं या फिर काफ़ी सारी एजेंसीज है जो एनालाइज करते हैं फंड्स को, दे लुक एट मोर कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न रादर देन पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। So just if I can explain simply, the drawback in point to point return is basically कि आप अगर एक आउटलायर पॉइंट आपने ले लिया इधर, जो लेट्स से कोविड का टाइम अगर ले लिया मैंने 23 मार्च 2020, तो तभी तो परसेंटेज सीएजीआर हैज टू बी लो बिकॉज मार्केट्स वर ऑल टाइम डाउन। तो इसलिए वो ड्रॉबैक है। एंड रोलिंग रिटर्न का एडवांटेज क्या है कि आप एवरेज ले रहे हो डे टू डे, एंड पिछले 3 साल का हर एक दिन का एवरेज आ रहा है, तो वो आउटलायर्स विल बी मिनिमाइज्ड, राइट? You know, the rolling return is over a time series. If I'm looking at 5 year return, I'm looking 5 year return not after 1 year before previous 5 year. So it's a time series return, so it will show consistency of the return. Whereas point to point return में अगर 1 साल बहुत अच्छा रहा या किसी एक स्टॉक ने बहुत अच्छा दे दिया या कोई असेट क्लास ने, अभी आप अगर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न गोल्ड का देखेंगे तो इट विल बी वेरी डिफरेंट टुडे because it has done so well in last 2-3 years. Right. Very, very interesting and fascinating. I think this is much important as compared to the mistake that most people make is that कि वो लोग point to point return देखेंगे and उनको अगर पसंद आ गया 3 year 5 year तो हम लोग amplify करते हैं, that is not right. Correct.
आपके जर्नी में सो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द करंट स्टॉक्स ऑफ कोर्स, बट आपके करियर में सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टॉक में बना होगा इन द पास्ट एंड व्हाट वर्कड? Yeah, so I'm not talking about Yeah. the current journey. So, in fact, it happened to be my first research report when I joined the industry. There was one metal company, Hindustan Zinc. In fact, for that matter, many people may not know it was obviously government company, and then privatization happened. And it happened to my first return report, and you'll be surprised, Kushal, it was available for less than working capital. The stock price was 4 rupees. My report came in at 7 rupees, but it was available at less than the working capital then, which was, I clearly remember, was 160 crores, and everything was free. And Wow. very interesting sort of thing. In fact, if someone were held, I mean, because it's more than 2 decades, it would have been more than 1500 times or so, because I mean, the privatization happened. फिर उसके बाद भी काफी सारा changes हो गया. But I think that I would say where I acted also. और वो एक साल में भी 4-5 गुना हो गया था. और किसी कारणवश ड्यूरिंग IT bubble or so, that pocket was very cheap. This was very cheap sort of company, and they did a lot of research in that. उसमें एक पर्टिकुलर नुएंस था उस कंपनी में, एक माइन थी रामपुरा अगुचा की, वो स्टार्ट नहीं हुई थी, बट मेरे रिलेटिव्स थे, एक्स रिलेटिव्स who has worked in that, and they mentioned about the metal content being one of the best in the Asia. So all those nuances were there, but I think if I have to pick out one single instance which is not related to as a career, that was very interesting. Because I was also very young, it was new, and it was an eye opener to me that, I mean, stocks can give such a significant return. But the regret is obviously it never held it for so long. Even in 1 year, it gave 4-5x return. तो कब की बात है ये, और आपने Mid कितने 90s की बात है. अच्छा, और आपने Yeah. कितने टाइम होल्ड किया था? नहीं, I in 1 year it was 4x. तो आपने एक साल में बेच दिया? I think I don't recollect, अच्छा. but yeah, but definitely didn't, because the lot has changed. The fundamentals changed in this case because the ownership changed. But the main thesis, apart from it being very cheap, was actually linked to technical nuances. And you'll be surprised, actually in late 90s, many of those names were very cheap, because if you recollect, there was IT, sort of literally a bubble. Frankly, it was a bubble. So all those old economy stocks were एक्सट्रीमली चीप. हमने यहाँ पहले जो एक डिस्कस किया था, कोई भी पॉकेट बहुत सस्ता है, उस टाइप का पॉकेट अभी अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इतनी एफिशिएंसी है कि इस टाइप के पॉकेट अवेलेबल नहीं है. एंड वैल्यूएशन में अगर बात करते तो आपने एक चीज बोली थी, क्वालिटी स्टॉक कैन नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट एट 60 पी ऑल्सो. मतलब भले ही वो क्वालिटी है, बट अगर पी उसका बहुत ज्यादा है तो दैट कैन नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. तो आप थोड़ा जस्टिफाई करोगे कितना वेटेज आप प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे देते हो एंड कैसे देखते हो? नहीं, देखिए, दो अलग चीज हैं. 60 पी कैन बी चीपर देन 30 पी अगर वो बिजनेस में ग्रोथ और आरओई अच्छा है. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ऑल गुड क्वालिटी हाई ग्रोथ बिजनेसेस जरूरी नहीं वो अच्छे स्टॉक हों, बिकॉज इट कैन बी एक्सपेंसिव. 60 कैन बी एक्सपेंसिव और चीप, डिपेंड्स ऑन ग्रोथ एंड आरओसी, राइट? सो दैट वाज द कंटेक्स्ट कि हम लोग जनरली कई बार पर्टिकुलरली न्यू इन्वेस्टर्स एंड ऑल, वो क्या होता है कि जो फ्लेवर ऑफ द सीजन थीम है, तो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा चर्चा होती है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगा या मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. उसका जो लास्ट लेग है वैल्यूएशन का, और जो डिसिप्लिन है, जो लक्ष्मण रेखा होना चाहिए प्राइस और वैल्यू का जो गैप की, उसके ऊपर कम चर्चा होती है. जनरली मार्केट में, इन जनरल बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे बोलते हैं ना, वो ड्राइविंग द कार लुकिंग एट द रेयर व्यू मिरर, जो चीज़ बहुत अच्छा करा है स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स भी लास्ट 3-4 साल में, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू लुक एट अ गुड बिजनेस नीड नॉट बी गुड स्टॉक. व्हाट इफ इट इज एक्सपेंसिव? Now, expensive can be 30 PE also, and cheap can be 60 PE. This is a separate topic. So, but the point I was trying to say is you have to look at valuation also along with the growth. तो आप बोल रहे हो 60 पी का स्टॉक भी चीप हो सकता है अगर उसमें ग्रोथ है. Absolutely. तो बेसिकली यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. तो 60 पी का स्टॉक कैसे, मतलब लाइक क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? क्या क्या पैरामीटर्स होंगे? इट डिपेंड. देखिए क्या होता है कि पीई मल्टीपल इज ए सिंपलिस्टिक वे. अल्टीमेटली बिजनेसेस लॉजिकली, अगर आप कुछ भी बिजनेस आप खरीदेंगे तो उसका एक रफ कट या तो साइंटिफिक वे में या इम्प्लिसिट वे में आप उसको एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो करेंगे. तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते बिजनेसेस आर वैल्यूड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोस. अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है, सपोज कोई बिजनेस 20-25% ग्रोथ कर रहा है और रनवे भी बहुत ग्रोथ है और कोई डिसरप्शन नहीं है, लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के उसको ग्रो करने के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना पड़ रहा है, चाहे वो फिक्स एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल में.
सो अगर उस केस में ऑन द बेस इज वेरी लो, देन 60 में ऑल्सो भी रीजनेबल। सो इसलिए बोल रहा हूँ, ये काफ़ी इसका कोई सिंपलिस्टिक आंसर नहीं है। इट्स ए वेरी सीरियस एंड I mean, professional should sort of understand and make it sort of thing rather than making a very generic comment. But yeah, sorry, ये बराबर है कि in general one has to be careful when the PE multiple is 60, 50. You have to be double sure about the growth. You have to double sure of the return on capital employed or so. So in general, अगर question है तो definitely 60 PE is not something that it may necessarily always be cheap. In exceptional cases, it can be cheap. In general, one has to be really, your observation is right, that if the market का PE multiple 20, 25 है, so you have to be really careful if you're buying something which is at high PE multiple. So P ratio के साथ साथ then from what I understand from you, आप PEG ratio को ज़्यादा weightage देते होगे, which is price earnings growth ratio. Yeah. Ideally, one has to look at DCF. I know people, we can't, but DCF, P is a simplified version of that. P is sum total of the discounted cash flow divided by आपका जो number of shares करते हैं, तो आपका पर वो value आ जाता है, right? So the point I'm saying is कि if you're looking at PE, you are absolutely right. You have to look at growth. A 20 PE can be cheap or expensive depending on growth and जो character of growth जिसको बोलते हैं ना ROE। एक कोई बिजनेस में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10-12% और एक में 25-30%, उसमें बहुत डिफरेंस। ये दो पैरामीटर्स से आपका PE मल्टीपल डिसाइड होता है। कौन से ऐसे बिजनेसेस है इन इंडस्ट्री इन इंडिया जो आपको लगता है कि उसमें ROE बहुत ज़्यादा है एंड ROC is also very good, margins are very high? कौन से ऐसे बिजनेसेस, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टॉक्स और कंपनीज, बट कौन से बिजनेसेस के यूनिट इकोनॉमिक्स आर वेरी पॉजिटिव इन इंडिया एट प्रेजेंट? या सो आई मीन ओनली फ्रॉम ROC लेंस देयर आर, अब तो आप कोई भी बिजनेस में आप देखेंगे तो जो इसको बोलते हैं कैपिटल लाइट बिजनेस, आपका जो क्वेश्चन, जहाँ पे मेरे को बिजनेस में कैपिटल जनरली दो जगह लगती है, एक फिक्स असेट्स फैक्ट्रीज और जो आपको जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें, और दूसरा वर्किंग कैपिटल जो धंधा आप चलाते हैं तो रिसीवेबल्स पे पेबल्स के लिए, इस दो के लिए। तो काफ़ी सारे बिजनेस है जहाँ कैपिटल इंटेंसिटी कम है। कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस जो हैं, जो स्टेपल्स कंपनीज जो हैं, या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी जनरली दे आर, उनको पेमेंट पहले मिलता है और जो सप्लायर्स को बाद में देना पड़ता है, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे चलती है। तो वो बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, बट देन ग्रोथ कम है। सो देर इज अ जक्सटापोज। कौन से ऐसे बिजनेस, यू हैव टू बैलेंस बोथ, राइट? एंड सो काफ़ी सारे बिजनेस है कंज्यूमर ओरिएंटेड, हेल्थ केयर कंपनीज, इनमें जनरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है। और दूसरा जो एक और जो नुआंस ये है, और उसका जो फाइनर प्रिंट ये है कि सेम सेक्टर में आपका डिफरेंट ROCs भी थोड़ा हो सकता है अगर कोई बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज या नहीं। इसलिए मैनेजमेंट को जनरली, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका ROCs, ROE विल बी बेटर रिलेटिवली, जो रेंज होगा उसमें बेटर होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा होगा। सो आई थिंक देर आर, जो जैसे कमोडिटीज़ हैं, ऑयल एंड गैस है, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो जनरली इन लोग का एक नॉर्म रहता है कि ROCs इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बट कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस है, हेल्थ केयर बिजनेस है, जो न्यू कंज्यूमर टेक बिजनेसेस हैं, यहाँ पे फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल साइकिल फेवरेबल है, तो ये दे आर मच बेटर, सुपीरियर ROC बिजनेस। आपने बताया कि एक ही सेक्टर में ऐसे दो बिजनेसेस रह सकते हैं जहाँ पर ऑफकोर्स एक का ROC बहुत ज़्यादा भी हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो क्या इनके पास ऐसे मोट होता है या एडवांटेज होता है वेयर दे आर एबल टू जनरेट हायर रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड वर्सेज द अदर वन? कैन यू एक्सप्लेन? बहुत ही आपने वेरी नाइस क्वेश्चन। जनरली बिजनेस का ROC एक रेंज में रहता है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता है जनरली। जैसे आप पेंट कंपनी ले लेंगे, कुछ एक रेंज में रहता है बिकॉज वो टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम हैं। आप कितना अगर 100 रुपये डालेंगे तो इतना असेट टर्न आएगा। एक तो फिक्स असेट का जो उसको बोलते हैं फिक्स असेट जो डाल रहे हैं फैक्ट्रीज में, उसका एक टर्नओवर रहता है और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रहता है। जो डिफरेंस आता है वो ROE एक दूसरा टर्म में आता है कि आप उसको कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, बोथ फ्रॉम लिवरेज, आप कितना डेट इक्विटी ले रहे हैं और कैसे आप कैपिटल अलोकेट कर रहे हैं। तो अगर आप वेल्थ क्रिएशन देखेंगे सेम सेक्टर में ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, 20-30 ईयर बेसिस, ऐसा क्यों है? अगर आप फार्मा देखेंगे, एक कंपनी का ROE, एक कंपनी का वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा है, या पेंट कंपनी या सीमेंट कंपनी देखेंगे जो ROC एक ही रेंज में रहेगा, उसमें भी कम ज़्यादा होता है बट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहेगा। कितना यूजुअली रेंज होगा तो सीमेंट जो कंपनीज में? जैसे सीमेंट कंपनी में अगर सपोज 15 से 20% का रेंज है, बट यू हैव सर्टन कंपनीज विच आर मोर देन 20% ROE एंड सर्टन कंपनीज विच आर लेस देन 15% ROE। और अगर आप उसको कोरिलेट करेंगे स्टॉक प्राइस से, जनरली ROEs जिसका अच्छा है और ग्रोथ भी अच्छा है,
उसका wealth creation will be significantly different on a 20-30 year basis, even in a same sector. And what is the reason for that? The reason is good or bad management. There is a one single thread of wealth creation across on a very longer term lens. मैं कोई 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, on a 20-30 year basis. Because a good management will not do unnecessary diversification. बहुत सारी चीजें होती हैं. Debt equity optimally utilize करेंगे. Efficiency first of all अच्छी रहेगी. All that will generally be captured in ROE. Yeah. Can you, in simple terms, explain as if you're talking to, let's say, 13, 14-year-old, what is the difference between ROCE and ROE? या सो ROCE ये आपने सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सो 100 रुपये में आपने जो स्टार्ट करा है, राइट, तो उसको 100 रुपये कैपिटल लगी आपको, उसको 2 भाग में डिवाइड कर, जैसे मैंने पहले भी तो हम लोगों ने डिस्कस किया, फिक्स कैपिटल लगेगी, वर्किंग कैपिटल लगेगी, उसके ऊपर मेरे को कितना रिटर्न मिलता है, राइट. अब जो 100 रुपीज़ कैपिटल है, उसके फंडिंग के 2 सोर्स है, एक मैं अपनी जेब से क्या लगाऊंगा, उसको इक्विटी बोलते हैं, और एक मैं लोन कितना लूंगा. तो जो मैंने टोटल पे लगाया है वो कैरेक्टर बताएगा उस बिजनेस में अगर 100 रुपये डालेंगे तो कितना रिटर्न बनेगा. अगर सपोज ये प्लॉट ऑफ लैंड है, आप एक बिल्डिंग बना के आप उसको कमर्शियल एरिया दे सकते हैं रेंट, तो आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न बनेगा, 7-8% रिटर्न बनेगा और एप्रिसिएशन होगा, बट मेनली रिटर्न तो 7-8% बनेगा. आई कैन ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड मे बी सिमिलर इन्वेस्टमेंट मेक अ हॉस्पिटल, अ होटल और अ मल्टीप्लेक्स. सबके ROC इज डिफरेंट. एक बेस्ड ऑन मतलब अक्रॉस साइकिल ROC, हॉस्पिटल का स्टडी रहेगा, होटल्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट. दैट इज ROCE. मतलब प्री टैक्स, मतलब कैपिटल चाहे वो खुद की लगी है और बोरो करी है, उस पर आप कितना बना रहे हैं. ROE इज स्लाइटली फाइनर वर्जन कि मेरा खुद का जो पैसा है इक्विटी, उसमें कितना रिटर्न बना है. तो आई विल हैव टू यूज डेट जुडिशियसली बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट. सो इफ आई यूज इट, आई कैन amplify my return on equity for the same ROCE. ये broadly ये तो हम लोग ने फाइनेंस में पढ़ाई है. Very very beautifully explained. तो इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कोई कंपनी में, तो कौन सा मेट्रिक को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी? देखिए, बिजनेस सिलेक्शन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज दैट बोथ आर इंटरलिंक्ड, बट एक ही आप इसको बहुत सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो ROCE, बिकॉज दैट शोज अगर बिजनेस अच्छा होना चाहिए उसको आप और सुपीरियर ROE कर सकते हैं, पर अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं है तो उसमें आप नियर टर्म ROE इंप्रूव करके सस्टेन नहीं होगा. गॉट इट. तो एक फिल्टर होना चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का. गॉट इट, फेयर. एंड आपने एक बताया कि कुछ बिजनेसेस, आपने जैसे एग्जांपल्स दिए कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मेरे डेटर्स जो है डेटर्स, तो वहाँ से मतलब मैं एडवांस में पेमेंट ले लेता हूँ और देन मैं क्रेडिट में देता हूँ, जिसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, कि मेरे पास पैसा पहले ही आ जाता है और मेरे को पेमेंट्स बाद में करना है. सम एग्जांपल्स ऑफ दीज बिजनेसेस वुड बी लेट्स से एजुकेशन बिजनेस, जहाँ पर लेट्स से फीस पहले आ जाती है स्टूडेंट से एंड देन जो भी खर्चे हो रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर वगैरह हो गए. और कौन से एग्जांपल्स है इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस है जिसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है? काफी सारे बिजनेसेस है. कंज्यूमर जब बड़े, अगर आप मार्केट स्टॉक मार्केट पार्लेंस में करेंगे तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है, मतलब जो इन विच इज ब्यूटीफुली हाई वर्किंग कैपिटल, ये कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज जो होती हैं, लाइक जो कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं, सो उनको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर से पेमेंट जल्दी आ जाता है, इमीडिएटली 7 दिन में आ जाता है. और जो वही चीज़ वो बनाते हैं तो खुद नहीं है, सपोज आउटसोर्स करते हैं, तो जो पार्टनर्स को आप पेमेंट करते हैं वो 2 महीने बाद करते हैं, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. रेस्टोरेंट इज अनदर सॉर्ट ऑफ थिंग, उसमें भी, या फिर बहुत सारे बिजनेसेस है जिसमें यू गेट द पेमेंट अर्लियर. तो जो वर्किंग कैपिटल में जो 3 पहलू होते हैं, आपको इन्वेंट्री में रखना पड़ता है, पेएबल और रिसीवेबल. सो उसमें आई थिंक द बिगेस्ट सेक्टर विच कैन कॉल आउट विच इज मोर ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस, जहाँ पेमेंट आपको अपफ्रंट मिल जाता है. Got it. And usually these businesses tend to do well because negative working capital, तो उनके पास cash flow already positive है. हाँ, पर कुशल उसमें ये एक पहलू है, इसमें मतलब बहुत सारे नुएंसेस होते हैं. जनरली सम ऑफ दिस बिजनेसेस में ग्रोथ कम है, तो यू मे रिजेक्ट. आई मीन, बिजनेस में है 40, 50, 60 और मे बी वेरी हाई, किसी का नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है, इनफाइनाइट ROCE भी हो सकता है थियोरेटिकली, बट अगर उसकी ग्रोथ ही सपोज सब ऑप्टिमल है, अगर आप सोप्स एंड डिटर्जेंट ले रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, द कैटेगरी विल ग्रो एट 5-6%, विल नॉट ग्रो इवन एट द नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट एट 10%. तो आई विल रिजेक्ट नॉट बिकॉज यू हैव टू लुक एट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड ग्रोथ इज इक्वली मोर इंपॉर्टेंट. व्हाट आई एम सेइंग इज देयर हैज टू बी बेसिक, जो बोलते हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है ना, तो उसके नीचे मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि 15% से ज्यादा ग्रोथ हो और 15% से ज्यादा ROCE. फिर उसके बाद 15% ROCE बिजनेस कैन बी अ गुड स्टॉक,
rather than a 50% ROC, because मेरे को दूसरे पहलू भी देखने हैं, ग्रोथ भी देखना है, वैल्यूएशन भी देखना है. या तो अभी आई वाज जस्ट रीडिंग, तो आपके जैसे पूरे फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है, सो देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ दीज न्यू एज कंपनीज दैट आर गेटिंग लिस्टेड. तो आपका क्या व्यू पॉइंट है ऑन ऑल दी स्टार्टअप्स दैट आर गेटिंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस? स्पेशली यहाँ पर वैल्यूएशंस की जब बात होती है तब कंपनीज विच आर लिस्टिंग एट लेट्स से 230 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स या तो प्राइस टू सेल्स 10 टाइम्स होता है. तो कैसे आप इसको देखते हो, एंड यू एज अ फंड हाउस डू यू देन इन्वेस्ट इन देम, और व्हाट्स योर अल्टीमेट थीसिस ऑन वेरियस स्टार्टअप्स गेटिंग लिस्टेड? देखिए, जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने डिस्कस किया है, एज अ फंड हाउस, एज अ टीम, चाहे वो सो कॉल्ड न्यू एज हो, ओल्ड एज हो, PSU हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी हो, देर इज नो डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई गुड बिजनेसेस विच कैन क्रिएट वेल्थ. और वो सेम क्राइटेरिया है ग्रोथ, ROC, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, जो फिल्टर्स लगता है, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो, न्यू एज हो, ओल्ड एज हो. डिफरेंस ये है इसमें कि some of these businesses, they are recent ones. तो वो टर्न अराउंड कर रहे हैं फ्रॉम लॉस मेकिंग टू पॉजिटिव, दे हैव यूनिट इकोनॉमिक्स चेंज हो रही है. तो आपको वैल्यूएशन करना है वो DCF पे करना है. ये कोई स्टील और सीमेंट कंपनी नहीं है 10-20 साल से स्टडी मीडियम ग्रोथ के, जहाँ पास्ट कैन टॉक अबाउट PE मल्टीपल्स. दे आर नॉट वेरी स्टेबल इन दैट कंटेक्स्ट. दे आर स्टेबल फ्रेंचाइज ऑल्सो. सो उस कंटेक्स्ट में जैसे हमने डिस्कस किया है कि कई बार 60 का PE मल्टीपल सस्ता हो सकता है अगर किसी बिजनेस लॉस करिए. फॉरगेट न्यू एज बिजनेस. व्हाट अबाउट कमोडिटी, अ स्टील कंपनी मेकिंग लॉसेस? द बेस्ट टाइम विच इज सेट टू बाय कमोडिटी व्हेन द PE मल्टीपल इज हाईएस्ट. अगर लॉस होगा तो PE मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? सो बेस्ट टाइम इज टू बाय व्हेन द साइकिल इज लोएस्ट. स्टॉक प्राइस तो कोई जीरो तो होगा नहीं. आपके प्राइस जैसे आपकी डिनोमिनेटर कम होगा तो PE मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 50-60 PE मल्टीपल पे कमोडिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं. It may be cheaper than a 5 multiple in the peak of the cycle. Same analogy you can apply for some of these businesses also. So हम लोग का जो देखने का जो एज अ इंस्टीट्यूशन जो है वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता है न्यू, IPO, नॉन IPO, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट. बिजनेस इज बिजनेस विच इज ग्रोथ, ROCE, कितना कैश जनरेट करते हैं, आप उसका वैल्यूएशन करिए, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए. इफ़ यू आर गेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम लॉन्गर टर्म और आपके अजम्पशन सही है तो रिस्क एडजस्टेड वेट लीजिए. बट सम ऑफ दीज बिजनेसेस आर न्यू, सो आप जब रिस्क एडजस्टेड वेट लेते हैं उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए कि यू आर बाइंग नॉट एवरीथिंग, बिकॉज ये आर न्यू बिजनेस फॉर अस, फॉर इवन फॉर द मार्केट. सो उस कंटेक्स्ट में ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आई है लास्ट 5 years में जहाँ हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव डन वेल. Within, if I look at from a lens of 3 to 5 year lens and not from a 1 year lens, Right. and some of them were at a very high multiple at the time of buying. बस पर वो high multiple भी because they were turning around या loss making or so. So I think that's the broad sort of framework rather than a particular उसको एक साइलो में, एक बकेट में उसको हम करें कि नहीं ये बिजनेस में है, ये इतना महंगा क्यों है, वो सो है. आई थिंक दैट विल नॉट गिव द प्रॉपर पिक्चर. तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि दैट आपको कमोडिटी स्टॉक्स तभी लेने चाहिए व्हेन दे आर एट हाईएस्ट पी? ऐसा जरूरी नहीं है तब लेना चाहिए. व्हाट आई एम सेइंग कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी कमोडिटी स्टॉक में जब लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं या लॉस मेकिंग या प्रॉफिट बहुत कम है तो आपका PE मल्टीपल ज़्यादा होगा. करेक्ट. PE मल्टीपल इज प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स. अर्निंग्स ये नहीं है तो मल्टीपल तो ज़्यादा होगा ही. राइट. सेम रिवर्स करते हैं पीक ऑफ द साइकिल. तो अगर आप लोएस्ट साइकिल में ले रहे हैं और जब साइकिल टर्न अराउंड करेगा तो अर्निंग्स बढ़ेंगे. तो अर्निंग्स बढ़ेंगे तो आपका एब्सोल्युटली ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर द मल्टीपल्स एंड एवरीथिंग विल, योर मार्केट कैप विल इंक्रीज. तो द पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि कई बार हाई PE मल्टीपल ऑल्सो कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. और रिवर्स अगर आप कमोडिटी स्टॉक में ये तो क्लियर है क्या होना, अगर आपने अर्ली साइकिल इन्वेस्ट किया है जब टर्न अराउंड हो रहा है, ऑब्वियसली यू विल मेक मोर मनी, राइट? एंड द रिवर्स विल नॉट हेल्प टू. अगर आपने पीक ऑफ द साइकिल में स्टील में या ग्लोबल साइकिल में ले लिया तो ऑब्वियसली जब डाउन टर्न आएगा, जब फ्रॉम वेरी हाई प्रॉफिट टू लॉस होगा, तो इट्स वेरी अनलाइकली द स्टॉक प्राइस विल डू वेल. अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो ये वीडियो देख रहा है, लेट्स से 21 ईयर ओल्ड है एंड उसकी सैलरी है 6 lakhs पर एनम, 50,000 पर मंथ, उसमें से उसको 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो कैसे उसको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट ही कैन ऑल्सो क्रिएट वेल्थ एंड स्टार्ट हिज इन्वेस्टिंग जर्नी?
Yeah. So आजकल तो like and there are many experts and you are one of them and there are many channels and there are who sort of give a lot of advisory on asset allocation. पहले तो आपको asset allocation करना चाहिए. देखिए equities में मेरे हिसाब से 2-3 चीज का ध्यान रखना चाहिए. जो आपको अमाउंट नेक्स्ट 3 इयर्स तक नहीं चाहिए, आइडियली नेक्स्ट 5 इयर्स तक, बट डेफिनेटली नेक्स्ट 3 इयर्स तक जिसकी जरूरत नहीं है, मतलब आपको 1 साल बाद उसका खर्चा नहीं करना है, वो वाला पैसा आपको इक्विटी में सेट असाइड करना चाहिए। जो भी नंबर आया, जैसे आपने बोला 10,000। नाउ देयर आर वेरियस कैटेगरीज, तो आपको 4 से 5 फंड हाउस का 3 से 5 ले सकते हैं, आप कर सकते हैं डिफरेंट फंड हाउसेस, डिफरेंट मैनेजर्स जो बोलते हैं, और बहुत वेल डिफाइंड कैटेगरीज हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जैसे लार्ज एंड मिड कैप, हम लोग ने जैसे इमर्जिंग की बात करी थी, या फिर जो फ्लेक्सी कैप है जिसके अंदर आप अक्रॉस अक्रॉस सेगमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक मल्टी कैप कैटेगरीज है इस टाइप के। उसमें आप 3 to 5 years एंड गिव द मनी टू 5 मैनेजर्स, लाइक 3 to 5 मैनेजर्स, एंड देन उसको आप एवरी ईयर सॉर्ट ऑफ मॉनिटर कर सकते हैं। और तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये बहुत बेसिकली सारे कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप इज इंडिया में कुशाल, व्हाट हैज चेंज इन लास्ट 5 years because of new listing, because of formalization, and because of money in the market, mid-size companies have also become very large, and small size are also sector leaders, some of them, because of the classification. So it's important to have jo universe of top 500 companies, because so many new listings have happened. Otherwise, अगर आपके पास चॉइस ऑफ बिजनेसेस नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा अमाउंट लार्ज कैप्स में डालना चाहिए. यू शुड स्प्रेड इट अक्रॉस विच आर funds which are focused on top 500 companies, and then you leave it to the fund manager because he will select the sectors as well as the size of the thing. So there are certain categories like large and mid cap, flexi cap, multi cap, that according to me should be the core categories, and then of course you can have some thematic, you can have some international funds. समझ गया. एंड एसेट एलोकेशन की आपने बात की, सो व्हाट्स योर पर्सनल एसेट एलोकेशन? कितना परसेंट कौन से एसेट क्लास में? No, mine is, as I said, the rule is like whatever you don't need in terms of जो भी आप स्टेज में आप हैं, आपके जो immediate requirement, immediate मतलब मैं 3 year का time period ले रहा हूँ. Rest everything should go according to, I mean, we are in the profession, so we obviously invest more towards equities. But my personal view is what is not required for 3 years, the best asset class on a risk-adjusted basis, on a tax efficient, taxation is very important, right? Tax efficient basis, transparency basis, cost competitive basis, costing basis is equities. So obviously my significant portion is in the mutual funds. And apart from that? No, it's well, and actually it's almost everything into. What about real estate, gold, fixed income? No, yeah, there is small amount into, again, in some sort of fixed income funds, but barring that it is 90% into equity mutual funds. गोल्ड वगैरह आप क्या व्यू पॉइंट है गोल्ड पे? आप अभी बुलिश नहीं हो अभी जो रैली हुआ है उसके बाद? देखिए, it's a very complex subject and all of us know why gold has sort of, I would just say a few things. First is that asset class has done so well, so we have to be slightly careful of that driving by looking at the rear view mirror. Something which has done well for last 2-3 years, people have a tendency to get more excited on that one, that with that caveat. Gold has also done well because fundamentally there has been change in allocation by central bankers, particularly from 2000 calendar year 22 and then 23, in terms of shifting from US Treasury to gold. So that has been the primary mover. Will it sustain? Can it become big? As an individual sort of investors, we cannot comprehend those complexity apart from currency fluctuation. So as an overall asset allocation, some portion has to be there, which is there in most household. 5, 10, 15%. Beyond that, at today's thing, this is my personal advice, there's too much extra money in isolation only to gold is not warranted, just because the asset class has done so well in last 3-5 years. Got it. Very interesting. Thank you so much for your time. I think I enjoyed the conversation. One last question that I ask all my guests. So if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Nilesh Surana, what is one question you would like to ask him towards the end? Oh, I'm not prepared for that. You have done it with such a, I mean, all the right sort of questions, and so I doubt if I could have missed anything. Yeah. But एक ऐसा सवाल जो आपको खुद को पूछना चाहोगे, क्या सवाल होगा वो? No, I think it's more to do with, because इस profession में है कि
जितने सारे जो जो आपके चैनल देखते हैं या फिर कुछ लोग इस प्रोफेशन में भी आना चाहते हैं, मेरा पर्सनल क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा कि अगर आप इस इन्वेस्टिंग फील्ड में प्रोफेशनली आना चाहते हैं या फिर अदरवाइज ऑल्सो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर यू are a bit passionate about it, and you sort of discipline and passion both are required. Otherwise markets may, there can be a lot of anxiety, there can be a lot of mistakes. So if you have passion about the sort of thing, then only you try to pursue it and not take it more like a hobby or what I would say it loosely. Yeah. तो डिसिप्लिन की बात अगर करें तो आपका रूटीन कैसा होता है? लाइक यू आर आल्सो वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन राइट फ्रॉम द स्टार्ट? No, we means as like I said, the institute is very process oriented, and I'm part of that institute of a format. So we have to be disciplined because, as I said multiple times, it's not about me. It's like when you're managing large amount of money, or even if it is smaller, when you're managing third party money, it has to be process oriented, and process definitely means discipline. So the team has to be disciplined in terms of how do we go about understanding various nuances. What are the guardrails? So I think so I'm part of it and sort of learning on that. आपका कैसा होता है डेली रूटीन राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? What time do you usually? So our team, we start early morning 8:30. We discuss about previous day's work. The team discusses in terms of what they have met and all. And then of course हम लोग के job में it's like a very routine sort of silos. You have to meet companies. You have to read a lot. You have to discuss with the colleagues, and you have to ultimately come at those analysis of businesses, management, valuation. That's a day in, day out, and it's very interesting. Kushal, the best part of this profession and is that everything is changing so fast. New businesses are coming, so you constantly learn from everyone. So that's a ongoing thing. And beyond that, then there are certain operations related and non-fundamental research oriented duties which most of us have to do, be it marketing, be it execution, be it team related. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Love the way you are very frank, candid, and so grounded even after achieving so much in your life. Lots to learn from you and your success story. Thank you so much once again. बहुत मजा आया and wish you all the best. Thanks for inviting. It was my pleasure. Thank you very much. Amazing. Thank you. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.